Hello, my dear students. Action is the foundational key to all the success. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ एपीएल 1 का केस स्टडी। एंड इस केस स्टडी में वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपाइलेशन प्रोसेस, टेस्टिंग एंड डिबगिंग प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रामिंग। इस केस स्टडी के थ्रू वी आर एबल टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ वी कैन गो ऑन कंपाइलिंग द प्रोग्राम, हमको टेस्टिंग कैसे करना है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ आवर कोड हाउ वी कैन सॉर्ट आउट दैट एस्पेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ डिबगिंग। सो इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन जब आपको प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है फ्रॉम यूनिट नंबर 2 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन गो विथ फर्स्ट compilation process. As we know that we are using Turbo C as well as VS Code for execution of our C program under this course. So already Turbo C ka compilation and linking ka process for execution I have shown you in the life cycle of C program. Let me remind what are the topics that we discussed during that time, and this particular diagram I hope you must be enjoyed during that session and you must be remembering till this session, right? So if we are writing a.c file, we are compiling that file and वहां पे काम कर रहा है compiler tc.exe नाम का file, and that converts my file into a.obj. a.obj के ऊपर लिंकर काम कर रहा है tlink.exe and it converts it into a.exe. Now all my three program we have tested at that time that a.c is unable to execute, a.obj also is unable to execute, but a.exe is a executable entity. तीनों के तीनों प्रोग्राम्स अपने कहां पे प्रेजेंट है? सी कोलन में, टर्बो सी के अंदर बिन डायरेक्टरी में, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव में प्रेजेंट है, right? Now if I want to execute this a.exe, that a.exe is loaded from secondary storage into RAM or main memory of the system, and then comes the microprocessor which executes it with the help of fetch, decode and execute. So we have seen this particular process of how the C programming can be compiled and can be executed in Turbo C. अभी हम लोग टेस्ट करते हैं how we can go on executing the code with respect to VS Code. वैसे VS Code में तो हम लोगों ने डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ GUI कैपेसिटीज हम लोगों ने कोड को एग्जीक्यूट किया, बट लेट मी टेल यू आल्सो कि कुछ कमांड के साथ भी आप VS Code में कैसे प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस इन VS Code. So now I am in VS Code window, right? In our C assignment folder, what we'll do is I'll create a new file, and inside this I'll create the file with the name as abc.c, right? And let's go on writing the code with respect to this, and I'll be writing it. इसको हम लोग minimize कर देते हैं, and we'll go with hash include, and I'll be including stdio.h. सिंपल रखते हैं कोड को. Then I'll go with void main, and इस main के अंदर we'll go on printing printf, and यहाँ पे success is always with n infinity, right? Info solutions, ऐसा कुछ मैंने इसमें टाइप कर दिया. Now if I want to run this code, ये तो हमको पता है कि यहां से उसको रन कर सकते हैं, right? Let me show you that. So if we go on running the code, executing the code, it shows me success is always with n infinity info solution. पर अगर यही कोड हम लोगों को कमांड लाइन पे जाके एग्जीक्यूट करना है, so as a programmer we must know that process also, ताकि जब आप लिनक्स मशीन पे काम करेंगे जहां पे GCC या G++ नाम का कंपाइलर आपके साथ है and GUI support is not there, then in that case how you can run the code ये भी आपको पता होना चाहिए. So please observe, मैं ये टर्मिनल को क्लोज कर रहा हूं, and then I'll go into the, यहाँ पे I'll go in terminal, and यहाँ पे I'll go with new terminal.
न्यू टर्मिनल मुझे किसके लिए चाहिए? सी असाइनमेंट्स के लिए। सो यहाँ पे ये मेरे लिए अभी नया एक टर्मिनल आ चुका है, राइट। ओके, सो इस टर्मिनल पे कमांड कैसे देने हैं ध्यान से देखना है, राइट। सो हियर आई विल बी गिविंग द कमांड एज gcc। यहाँ पे वैसे टर्बो सी में हम लोगों का जैसे tc.exe नाम का फाइल कंपाइलर के रूप में काम कर रहा था। लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में जीसीसी या G++ ये कंपाइलर्स आपके लिए काम करेंगे। G++ मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो विद C++ एग्जीक्यूशन, पर यहाँ पे सी असाइनमेंट के लिए आई हैव यूज व्हाट जीसीसी एज अ कंपाइलर, एंड फिर फाइल का नाम देना है। सो आवर फाइल नेम इज abc.c। अगर कुछ एरर्स है तो एरर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज इट विल शो सिंपली द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। प्लीज ऑब्जर्व। सो इसने प्रॉम्प्ट शो कर दिया। अभी इसका exe फाइल जो एग्जीक्यूट करना है, वी कैन ऑलवेज गो विद ./abc.exe, ./abc.exe। थोड़ा अलग फॉर्मेट है, ऑब्जर्व करना है। एंड देन आई विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस। हाँ, इट सेज सक्सेस इज ऑलवेज विद एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस, राइट। नाउ आप ये और एक तरीके से रन कर सकते हैं। हर बार जीसीसी जब किसी भी सी फाइल का हम लोगों को एग्जीक्यूटेबल बना देगा, तो दैट विल बी गिविंग अस विद द नेम ऑफ a.exe, राइट। मैं उस फाइल को भी आपको दिखा दूंगा अपने वर्क स्पेस में, पर यहाँ पे उसको एग्जीक्यूशन भी कैसे करना है वो देख लो। यहाँ पे ./ आप सिर्फ ए भी लिखो तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। And it shows success is always with an infinity info solution. I hope कि ये कमांड लाइन का एग्जीक्यूशन भी आपको पता चला होगा। नाउ लेट मी शो यू। इन टर्मिनल्स को डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे अभी अपने वर्क स्पेस में चलते हैं। प्लीज ऑब्जर्व, abc.c फाइल हम लोगों ने लिखा था, उसके नीचे आई गेट व्हाट abc.exe जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना था। इसके साथ और एक फाइल ऊपर आपको दिख रहा है a.exe। हर जो फाइल आप इसमें लिखोगे जीसीसी के साथ उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल बनाओगे उसका, तो हर बार a.exe तो बनेगा ही, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस आल्सो। अभी थोड़ा सा काम करते हैं डीबगिंग के ऊपर, एंड आई विल बी शोइंग यू अ वेरी जेन्युइन डीबगिंग प्रोसेस दैट कैन हैपन विद टर्बो सीआईडी, राइट। बहुत ध्यान से देखना है। सो इस डिबगिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो ऑन राइटिंग वन सिंपल कोड, राइट। सो हम लोग दो नंबर के एडिशन का कोड करने वाले हैं, एंड इस दो नंबर को हम लोग यूजर से एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो ऑन राइटिंग द कोड। हियर आई विल बी गिविंग द नेम टू आवर कोड एज debug.c. Not necessary that you should give the name as debug.c, but as we are looking towards debugging aspects, so I mentioned the name as debug.c, right? यहाँ पे एक काम करते हैं, include stdio.h. These are the known thing. नया कोई इंस्ट्रक्शन मैं इसमें लिखने वाला नहीं हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस आपको पता है उसी के साथ यहाँ पे काम करेंगे, राइट। ओके, देन विल गो विथ void main, राइट। ओके, एंड यहाँ पे आई विल से मुझे तीन वेरिएबल चाहिए, इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा रिजल्ट। ऐसे तीन वेरिएबल के साथ काम करने वाले हैं, जिसमें से नंबर 1 एंड नंबर 2 आई विल बी एक्सेप्टिंग फ्रॉम यूजर, एंड देन इसको एडिशन करके रिजल्ट में इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे एंड यूजर को डिस्प्ले करेंगे। एडिशन का रिजल्ट इज सो एंड सो। सिंपल प्रोग्राम है। सो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, एंड देन आई विल गो विथ प्रिंटफ के साथ चलेंगे। सो यहाँ पे आई गो विथ पहले नंबर का एक्सेप्ट करते हैं, प्रिंटफ एंटर नंबर 1, राइट। ओके, एंड सपोज मैंने स्कैनफ ऐसे लिख दिया,
परसेंट डी एंड व्हाट नंबर वन, राइट। अभी नंबर टू को एक्सेप्ट करते हैं, प्रिंट एफ एंटर नंबर टू, राइट, ओके। एंड यहां पे स्कैनफ यूज करते वापस, परसेंट डी एंड व्हाट नंबर टू, दैट्स इट, राइट। सो अभी नंबर वन इज एक्सेप्टेड, नंबर टू इज एक्सेप्टेड, रिजल्ट करना है इन दोनों का एडिशन को लेके। सो रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू। तो अभी अपना रिजल्ट जो है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में है, उसको डिस्प्ले करना है। सो आई गो विथ सिंपली printf एंड विल से एडिशन रिजल्ट इज, कौन से फॉर्मेट में है, परसेंट डी, मतलब इंटीजर फॉर्मेट में है, एंड इसको डिस्प्ले करेंगे बिकॉज इसका वैल्यू इज इन देयर इन द रिजल्ट। सो दिस परसेंट डी विल बी रिप्लेस बाय रिजल्ट, राइट, ओके। एंड सबसे एंड में रखते हैं गेट सी एच, राइट। तो ये कोड तो हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों को चाहिए CLR SCR एंड गेट सी एच के लिए कौन सा हेडर फाइल, तो चाहिए हमको conio.h, right, okay. अभी वन न्यूमन बाबा says that save your program and then go for compilation process। तो अभी कंपाइलेशन का प्रोसेस करते हैं। कंपाइलर इज हैप्पी, राइट, दैट मीन्स अपना प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई भी सिमेंटिक इश्यूज नहीं है, सो वार्निंग्स आर नॉट देयर एज वेल एज एरर्स आर नॉट देयर, राइट, ओके। नाउ इफ आई रन द कोड, लेट अस गो ऑन चेकिंग कि अपना कोड डिजायर्ड आउटकम दे रहा है या नहीं। We have written the code for addition of two numbers, right? Okay, let's run the code. Number one, I will mention it as 12. Number two, I'll be mentioning it as 13. तो मुझे addition expected है इसमें 25. Let's see, are we getting the addition in a proper way or not? Please observe. So addition का result कुछ unpredictable value आया, right? तो यहां पे जब कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं दे रहा है, वार्निंग नहीं दे रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स से बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन हुआ है। बट इफ इट इज नॉट गिविंग यू डिजायर रिजल्ट्स, तो अपने कोड में जो एरर्स रहते हैं उनको कहते हैं लॉजिकल एरर्स। मतलब सिंटैक्स सिमेंटिक्स वाले एरर नहीं है, सिंटैक्स वाला एरर नहीं, सिमेंटिक्स वाले वार्निंग नहीं, पर फिर भी प्रोग्राम इज नॉट गिविंग यू डिजायर्ड आउटकम। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ प्रोग्राम में जरूर है, एंड उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड डिबगिंग प्रोसेस। क्योंकि अभी सिंटैक्स तो प्रॉपर लिखा है, सिमेंटिक्स भी प्रॉपर है, बट स्टिल इफ इट इज नॉट गिविंग अस प्रॉपर आउटकम, हम लोगों को ये मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा डिबगिंग की हेल्प से। एंड यहां पे आता है द नीड ऑफ डिबगिंग। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गो विद डिबगिंग विद टर्बो सी। अभी टर्बो सी में जब भी हम लोग डिबग करेंगे, तो यहां पे आई कुड बी एबल टू वॉच द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर वन, नंबर टू एज वेल एज रिजल्ट। एंड इस डिबगिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग। इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग, राइट। नाउ इन दिस केस हाउ वी कैन गो विद the key for working on the debugging is F7 and F8। फिर से बता रहा हूं कि is F7 as well as F8। जैसे ही आप F7 प्रेस करोगे इसमें, तो दिस विल गो एंड मूव इनटू द सिंगल स्टेपिंग मोड, जहां पे हर बार हम लोग एक एक स्टेप का आउटकम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अभी देखो मैं F7 प्रेस कर रहा हूं, इफ आई प्रेस F7 इन दिस, द हाइलाइटर, ये ग्रीन कलर का हाइलाइटर आपको दिख रहा है, राइट, दिस पर्टिकुलर हाइलाइटर इज अपियरिंग ऑन, this highlighter is appearing on main, because main is the main entry point of our C as well as C++ program, right? तो प्रोग्राम हमेशा शुरू होगा कहां से, मेन से। एंड जैसे जैसे आप F7 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 कीज दबाते जाओगे, वैसे वैसे एक एक स्टेप से ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको दिखने वाला है। ऑब्जर्व कीजिए। अभी लेट मी शो यू अपना यूजर स्क्रीन के ऊपर क्या है। तो जब मैं विंडो मेनू में जाऊंगा, तो यहाँ पे यूजर स्क्रीन करके ऑप्शन है, प्लीज ऑब्जर्व। एंड यहाँ पे जैसे मैं यूजर स्क्रीन में जाऊंगा, तो माई यूजर स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ प्रीवियस आउटकम, राइट, ओके। सो अभी यहां पे आए, F7 प्रेस किया, आई गो इनटू द F7, राइट, ओके। इसको हाईलाइट लगता हूं, हाँ F7। तो ये आया अभी CLR SCR में, राइट।
जैसे ही F7 प्रेस करेंगे और एक बार, तो अपना जो स्क्रीन है CLR SCR का रिजल्ट दिखाएगा, दैट इज व्हाट क्लियर स्क्रीन। प्लीज ऑब्जर्व दिस। मैं वापस यूजर स्क्रीन में जा रहा हूं एंड नाउ माय स्क्रीन इज क्लियर। उसके बाद प्रिंट एफ, उसके बाद प्रिंट एफ। सो पहला लाइन प्रिंट हो चुका होगा, प्लीज ऑब्जर्व। वापस विंडो में जाएंगे, यूजर स्क्रीन देखेंगे, सो इट हैज प्रिंटेड एंटर नंबर 1। आई होप कि ये प्रोग्राम अभी सिंगल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हुए आपको पता चल रहा है। एंड द की इज F7 की इन टर्बो सी, राइट? ओके, अभी द थिंग इज लाइक दिस स्कैनफ, ये जो स्कैनफ है, उस स्कैनफ में हम लोग जो नंबर एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो नंबर किस में आने वाला है? नंबर 1 में, ये स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आने वाला है। तो हम लोग उनको चेक करना है कि नंबर 1 में सही से नंबर आ रहा है या नहीं, नंबर 2 में भी सही से नंबर आ रहा है या नहीं। बिकॉज सिंटैक्स एरर तो नहीं है, पर फिर भी अपना जो समेशन है, दैट समेशन इज नॉट प्रॉपर एंड दैट इज नॉट गेटिंग स्टोर्ड इन रिजल्ट। तो मुझे अभी अगर वेरिएबल्स को वॉच करना है, उनके वैल्यूज को वॉच करना है, तो वो कैसे करना है प्लीज सी। मैं अगेन जाऊंगा विंडो करके मेरे मेनू में, एंड विंडो मेनू में वॉच नाम का एक ऑप्शन है, देखिए, राइट? एंड इन दिस वॉच ऑप्शन ये आएगा मेरे लिए एक नया विंडो जिसको हम लोग कहेंगे वॉच विंडो, राइट? एंड इस वॉच विंडो में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को वॉच कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स टू बी वॉच? नंबर 1, नंबर 2 एज वेल एज रिजल्ट। तो लेट अस सी, यहाँ पे इस विंडो में जाके आपको एंटर की को हिट करना है, तो एडिट वॉच, वॉच एक्सप्रेशन, क्या वॉच करना है? सो आई वांट टू वॉच नंबर 1। तो नंबर 1 में अभी एक गार्बेज वैल्यू है। डाउन एरो से इस हाइलाइटर को आगे लाएंगे, फिर एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे चाहिए हमको नंबर 2 भी वॉच करना है। फिर से यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे करेंगे रिजल्ट, राइट? तीनों के तीनों जस्ट डिक्लेयर्ड है अभी, तो इनके अंदर क्या है? गार्बेज वैल्यूज है, राइट? आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स कैसे दिखते हैं। एंड वी हैव सीन इन थ्योरी दैट इफ दे आर डिक्लेयर्ड, दे आर होल्डिंग व्हाट वैल्यूज? गार्बेज वैल्यू। तो ये भी कंफर्म हो रहा है इस डिबगिंग एक्टिविटी के साथ, राइट? अभी जो अपना है स्कैनफ, ये स्कैनफ एग्जीक्यूट होने के बाद नंबर 1 में आना चाहिए जो हम लोग एंटर कर रहे हैं वैल्यू। सो ऑब्जर्व कीजिए, सो इफ आई गो विथ scanner, now it comes onto the screen and it is trying to accept the value from me. Let us enter 12. So 12 आना चाहिए नंबर 1 में। चेक करते हैं, आर वी गेटिंग 12 इन नंबर 1? नो। तो वहां पे एक प्रॉब्लम मिल रहा है। आगे चलते हैं, इट गोज इन एंटर नंबर 2। अभी नंबर 2 में एंट्री करते हैं 13 का, राइट? सो 13 आना चाहिए नंबर 2 में। सो यहाँ पे 13 नहीं आ रहा है, राइट? सो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है? यस, देर इज नो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक इश्यूज, बट स्टिल ये स्कैनअप अपने लिए काम नहीं कर रहा है, एज वेल एज ये भी स्कैनअप अपने लिए काम नहीं कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इन द रिजल्ट ये काम कर रहा है कि नहीं देखते। ऑब्वियसली इन वैल्यूज का रिजल्ट इधर दिखना चाहिए। सो लेट्स सी, यस, इन वैल्यूज का रिजल्ट तो यहाँ पे मिल रहा है, बट can I say that problem is identified with debugging process in this scanf as well as in this scanf? तो सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो चुका है। सो आई मीन टू से दैट जब हम लोग इस scanf को ध्यान से देखते हैं, तो एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ नंबर 1, एंड हमने मिस कर दिया है एड्रेस ऑफ नंबर 1। तो आपको यहां पे पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है वो लिखना, एड्रेस ऑफ, राइट? ओके, सो वापस एक बार इससे बाहर निकलते हैं, बिकॉज हमको अभी पता चला है कि अपने कोड में कहां पे प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। लेट्स गो विथ स्कैनफ एड्रेस ऑफ नंबर 1 एंड यहाँ पे एड्रेस ऑफ नंबर 2। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइलर इज हैप्पी, डीबग करके वापस चेक करेंगे कौन सा की है बताओ? यस, दैट इज व्हाट? F7 की। आई एम प्रेसिंग F7 की एंड हमको वॉच करने हैं 3 वेरिएबल। ऑलरेडी इस कोड में थे, तो ये 3 वेरिएबल अपने सामने आए। अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुए, तो सारे के सारे क्या है? अनडिफाइंड। जैसे ही F7 करेंगे, कंट्रोल विल कम टू द CLR SCR,
ये तीनों इनिशियलाइज होके इनके अंदर कौन से वैल्यूज आए, गार्बेज वैल्यूज, राइट। एंड अभी चेक करते हैं कि आर वी गेटिंग वैल्यूज इनसाइड इट। सो मैं अभी 12 दे रहा हूं एंड प्लीज ऑब्जर्व num1 में आया 12। दिस इज द मैजिक ऑफ डीबग, राइट। सिंटैक्स एरर नहीं, सिमेंटिक्स एरर नहीं, फिर भी कोड इज नॉट गिविंग यू डिजायर आउटकम, मतलब कोड में गड़बड़ जरूर है। एंड वो लॉजिकल एंटिटीज को ढूंढने के लिए कहां पे गड़बड़ हो रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल इज डीबगिंग। तो मैं तो हमेशा करता हूं कि डीबगिंग आपको करना ही है। आपका प्रोग्राम वर्क हो रहा है तो भी डीबगिंग करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा फ्लो कैसे नाइसली मेंटेन है। एंड अगर लॉजिकल एरर तो है तो आपको debugging is the only tool which can give you and save you from logical error and take the code into proper working positions, right? Let's see, second scan भी वर्क नहीं कर रहा था, अभी वर्क कर रहा है, क्या देखते हैं। 13 दिया, प्लीज ऑब्जर्व नंबर 2 में अभी 13 आ चुका है, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट we'll go with the result, perfect result, and this time we'll see addition result is 25, right? Okay, I hope you understood this debugging process. This is very nice. Please do it step by step and try to see the variable के values। पहले ये ampersand मत लिखो तो आपको पता चलेगा कि ये syntactical issue नहीं है, but यहाँ पे अगर आप ampersand लिखते नहीं हो तो this scanf is not going to give you desired result, ये आपके लिए काम नहीं करता है। I hope you understood the debugging process. So that's it for this session. Please do it in your machine with respect to this code as it is, तब जाके बहुत बढ़िया confidence बनेगा, right? So keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.